تمہیں معلوم ہونا چاہیے شورشیں اور بغاوتیں بابر کے عہد میں بھی ہوئیں، ہمایوں کے دور میں بھی، اکبر، جہانگیر اور پدر بزرگوار شہنشاہ شاہجہان کے زمانے میں بھی۔ اب کیا نہیں ہو رہی ہیں؟ لیکن اب زیادہ ہیں۔ ہاں، لیکن کیوں زیادہ ہیں؟ یہی بات غلام کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم سمجھ چکے ہیں۔ کیا جہاں پناہ کا خیال ہے؟ ہمارا خیال نہیں، یقین ہے۔ شورشوں اور بغاوتوں میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ ہندو حکومت قائم کرنے، مسلم حکومت اور مسلمان قوم کو نیست و نابود کرنے کا جو خواب عرصہ دراز سے دیکھا جا رہا تھا، اب اسے عمل میں لانے کی تدبیریں شروع ہو گئی ہیں۔ جہاں پناہ، کیا یہ واقعہ ہے؟ ہاں، بالکل صحیح اور درست واقعہ۔ اور ہم تمہیں ایک اور بات نہ بتائیں؟ ارشاد ذل الہی، اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے، یعنی مسلمان بن کر حکومت نہ کرتے، اسلام کی خدمت قائم کرنے کی جد و جہد نہ کرتے، تو بھی وہی ہوتا جو آج ہو رہا ہے، یعنی شورشیں اور بغاوتیں جڑ پکڑ لیتی۔ ہاں، ہمارے اس اقدام سے کچھ اضافہ ہو جائے گا، لیکن حقیقی اضافہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ اب بعض لوگوں کے نزدیک وقت آ گیا ہے کہ مسلمان حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ آج ہمارے بجائے اگر شہنشاہ اکبر تخت نشین ہوتے تو بھی یہی ہوتا جہاں پناہ۔ ہاں خانے جہاں، پھر بھی یہی ہوتا، اس لیے کہ شہنشاہ اکبر بے انتہا روادار، فراخ دل اور بلند حوصلہ ہونے کے باوجود بہرحال مسلمان تھے، اور یہ لوگ مسلمانوں کا وجود کسی طرح بھی برداشت نہ کر سکتے، نہ جلال الدین اکبر کے روپ میں، نہ محی الدین عالمگیر کی صورت میں۔ اکبر کے زمانے میں ان کی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی تھیں، عالمگیر کے زمانے میں وہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ کیا تم سیواجی کو ایک فرد واحد کی بغاوت اور شورش سمجھتے ہو؟ جہاں پناہ، نہیں، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پشت پناہ بہت ہیں، لیکن ابھی وہ میدان میں نہیں آئے، منتظر ہیں بہتر حالات کے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاہی مخبر حاضر ہوا اور اس نے اطلاع دی کہ سیواجی نے شہر سورت پر، جو بندرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور جہاں سے حاجیوں کے قافلے حجاز جاتے ہیں، زبردست حملہ کیا اور قتل عام کر کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ عالمگیر کی نگاہ میں سورت کو ایک طرح کا تقدس حاصل تھا، یہاں سے زائروں اور حاجیوں کے قافلے دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرزمین حجاز کی طرف قصب سعادت و رحمت کے لیے جاتے تھے۔ حاجیوں کی خاطر مدارت کا اہتمام حکومت کی طرف سے ہوتا تھا اور انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچنے دی جاتی تھی۔ خود عالمگیر بھی ایک عرصے سے حج کا ارادہ کر رہا تھا اور اسی بندرگاہ سے روانہ ہونے والا تھا، لیکن ہر سال یہ ارادہ نئی نئی شورشوں اور بغاوتوں کے باعث ملتوی کر دینا پڑتا تھا اور خدا کے بھروسے پر آئندہ سال کی نیت کر لی جاتی تھی۔ سورت پر سیواجی کی طاقت و تاراج کی خبر سن کر عالمگیر کا رنگ رخ بدل گیا، وہ بار بار پہلو بدلتا تھا اور خونخوار نظروں سے در و دیوار کو تکتا تھا۔ عالمگیر کا غصہ اہل دربار نے بارہا دیکھا تھا، لیکن آج کی برہمی اور آشفتگی کا رنگ کچھ اور ہی تھا۔ ہر شخص سہما ہوا اور دبکا ہوا اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، دیکھیں شہنشاہ والا جاں اب کیا فرمان صادر کرتے ہیں۔ کچھ دیر تک عالمگیر خاموش رہا، پھر اس نے بلند اور گونجتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، جے سنگھ کو حاضر کیا جائے۔ آن کی آن میں جے سنگھ، عالمگیر کا معتمد اور منہ چڑا سالار اور مصاحب حاضر دربار ہو گیا۔ جے سنگھ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عالمگیر برہم ہے اور اس درجہ برہم ہے۔ وہ طلبی کا فرمان سن کر خوش خوش حاضر ہوا۔ پہلے تو حاضرین دربار کا رنگ دیکھ کر وہ چونکا، پھر اس کی نگاہ اپنے آقائے ولی نعمت پر گئی اور یہ دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا کہ وفور غضب سے شہنشاہ کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگا، کیا کوئی نیا حادثہ رونما ہوا؟ کہیں سے کسی نئی شورش یا بغاوت کی اطلاع آئی؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہی سوچتے وہ اپنے شہنشاہ کے سامنے پہنچا اور آداب بجا لایا، گویا کہنے لگا، غلام حاضر ہے۔ شہنشاہ نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا، جے سنگھ، ارشاد جہاں پناہ، سیواجی کے حوصلے اب بہت بلند ہو گئے ہیں، غلام اس کی سرکوبی کے لیے کافی ہے، صرف فرمان سلطانی کی دیر ہے، میرے سوار اس کی سرزمین کو روند ڈالیں گے، میری تلوار اس کا خون چوس لے گی، وہ میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن جے سنگھ، سیواجی تنہا نہیں ہے، تنہا ہوتا تو سورت کی بندرگاہ پر حملہ کرنے کی جسارت نہ کرتا۔ سورت کی بندرگاہ پر جہاں پناہ؟ ہاں، وہاں جہاں سے حجاج کے قافلے سرزمین حجاز کا رخ کرتے ہیں، وہاں بے شک بے ادبی، گستاخی اور سرکشی کی یہ انتہا ہے، اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔
और गुलाम का निहायत अदब के साथ इसरार है कि उसकी सरकूबी के लिए गुलाम को मामूर किया जाए। जय सिंह, जहां पना जय सिंह की तलवार सेवाजी का खून चाटने के लिए मचल रही है। वो जहां कहीं भी होगा ये तलवार बरक़े गज़ब बनकर उसके सर पर गिरेगी और उसे तन से जुदा कर देगी। लेकिन जय सिंह शायद जहां पना फरमाना चाहते हैं कि वो अकेला नहीं है। हाँ जय सिंह, हम यही कहना चाहते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं। उसके साथ सारी दुनिया हो तो भी वो जय सिंह के हाथों से बच नहीं सकता। अब उसकी मौत आ गई है। जय सिंह तीरे क़ज़ा बनकर उस जगह पहुंचेगा जहां ये लुटेरा रूपोश होगा। लेकिन जहां पना वो कौन है उसके साथी? हम उनके नाम नहीं जानते लेकिन कौमियत से वाकिफ हैं। जहां पना नाम नहीं जानते लेकिन उनकी कौमियत से वाकिफ हैं। हाँ जय सिंह, तो इरशाद हो, उनकी कौमियत क्या है? वही जो सेवाजी की है, यानी हिंदू। हाँ जय सिंह, क्या जहां पना का मकसद ये है कि सेवाजी की पुष्ट पनाही हिंदू अवाम की तरफ से हो रही है? हिंदू अवाम की तरफ से नहीं, वो तो शाह परस्त हैं। उनकी वफादारी शक्को शुबे से बालातर है। फिर वो अवाम नहीं, ख्वास हैं। ख्वास जहां पना? हाँ जय सिंह, लेकिन वो कौन हो सकते हैं? क्या ज्वाड़े? क्या बड़े बड़े जमींदार? क्या हिंदू रियासतें? क्या मंदिरों के महंत और पुजारी? क्या पंडित और साधु? क्या साहूकार और ताजिर? हाँ जय सिंह, सेवाजी के पुष्टपना इन्हीं में से हैं। खा कुछ खासब होंगे, होने दीजिए। हाँ, हमने तय कर लिया है कि मुकाबला किया जाए। बेशक मुकाबला होगा। क्या तुम जाने को तैयार हो? जहांपना के मुकाबले में ये गुलाम इज्जत और नामूस का दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कर सकता है कि गुलाम की वफादारी पर इससे बड़ी कोई ज़रब आज तक नहीं लगी थी जो आज लगी है। और ये ज़रब किसी गैर ने नहीं, किसी दुश्मन ने नहीं, आकाए वली नेमत ने जहांपना ने पहुंचाई है। खफा हो गए जय सिंह? ये ताब, ये मजाल, ये ताकत नहीं मुझे। लेकिन जहांपना गुलाम ये अर्ज किए बगैर भी नहीं रह सकता कि उसके दिल से खून टपक रहा है। लेकिन क्यों जय सिंह, हमने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। जहांपना का ये सवाल, क्या तुम जाने को तैयार हो, एक तीर था जो दिल पर आकर लगा और वो अब तक चुभा हुआ है। लेकिन क्यों जय सिंह? क्या जय सिंह की आज तक की जिंदगी आका की वफादारी के सिवा कुछ और रही है? क्या जय सिंह ने अपने हम कौमों से अपने बादशाह के लिए लड़ने में एक पल का भी तामुल किया है? हम शाह परस्त लोग अपना सब कुछ बादशाह को समझते हैं, खुदा के बाद उसी का दर्जा मानते हैं। यही वजह है कि जय सिंह हमेशा अपने शहनशाह के पसीने पर खून बहाने को तैयार रहा। और आज उससे सवाल किया जा रहा है, क्या तुम जाने को तैयार हो? जहांपना, क्या इससे बढ़कर जय सिंह की वफादारी, जानिसारी और आका परस्ती की कोई तौहीन हो सकती है? जय सिंह की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो अपने आका के कदमों में जा पड़ा। आलमगीर ने उसे उठाकर गले लगाया और खाने जहां से कहा, यह मुहिम जय सिंह के सुपुर्द की जाती है। फिर जय सिंह जब शादमा और कामरान रुखसत हो गया तो शहनशाह ने खाने जहां पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, देखा तुमने खाने जहां? उसने दस्त बस्ता अर्ज की, जय सिंह की वफादारी हम सब के लिए एक सबक आमूज मिसाल है। ये वही जय सिंह है जो राजपुताने के मशहूर रियासत जयपुर का फरमारवा था। जय सिंह का किला मुस्लिम तहजीब की पूरी अक्कासी के साथ आज भी मौजूद है और इस किले के एक गोशे में एक छोटी मस्जिद भी है। ये मस्जिद भी जय सिंह की बनाई हुई है। जय सिंह वाकई अजीबो गरीब खसाइस का आदमी था। मजहब और अकीदे का जहां तक ताल्लुक था वो पक्का और कट्टर हिंदू था, लेकिन उसमें इंसानियत, दोस्ती, शराफत नफ्स, आली ज़रफ़ी, वफादारी और आका परस्ती का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। मुगल शहनशाहों ने बहुत से राजवाड़ों और रियासतों के फरमारवाओं पर एहसानात किए थे, उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा दिया था। खुद उसकी कुव्वत व अजमत में इजाफे का सबब बने थे, लेकिन उनमें से अक्सर इब्नुल वक्त थे। ये ताकत दोस्त थे, जिसने सर पर ताज शहरियारी रखा ये उसके सामने सरबसजूद हो गए। जिसने औरंगे शाही पर कदम रखा उसके कदमों से लिपट गए। दर हकीकत इनका न कोई दीन था न ईमान, ये सिर्फ रुपए के परस्तार थे। कुव्वत और ताकत पर इनका ईमान, जोर और दबदबा इनका दीन था। जो ताकतवर है वो उसी के लिए है कि ये उसके सामने सर झुका दे, खा वो कोई हो, और जो ताकतवर नहीं है उसे बगैर किसी खता और कसूर के भी ये पामाल करने और हदफ़े सितम बनाने पर तैयार रहते थे। लेकिन जय सिंह इन नमक हलाल आका परस्तों में था, जिसने ये याद रखा था कि मुगलिया खानदान ने उसके आबा व अजदाद के साथ कैसा सलूक कर रखा था और खुद उसके साथ मौजूदा शहनशाह का बर्ताव कैसा था। यही चीज थी जिसने उसे सही मानी में आका परस्त बना दिया था।
वो दुनिया की हर चीज से, हत्ता के जनो फर्जंद तक से दस्तबरदार हो सकता था, लेकिन अपने आका का दामन छोड़ दे ये नामुमकिन था। जय सिंह जितना बड़ा सिपाही था उतना ही बड़ा मौकाशनास, दूरबीन और मुदब्बिर भी था। उसने बहुत से मारके सर किए थे और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए थे। हर मारके पर उसने अपने आका से खिराज तहसीन वसूल किया था और हर कारनामे पर उसने दुश्मनों तक से दाद हासिल की थी। वो साफ दिल, साफ तबा और साफ मिजाज शख्स था, खरा, बेबाक। आज उसने अपने आका के सामने जितनी बातें कर ली थी, एक मामूली दरबारी से लेकर खाने जहां तक किसी में हिम्मत न थी कि आतिशखू, शोला मिजाज और आशिफ्ता तबा शहनशाह के सामने यूं साफ और बरमला अपने जज्बात और तासुरात का इजहार कर सकता। ये उसी में हिम्मत थी, वही और सिर्फ वही ये कर सकता था। जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और जब आलमगीर ने उससे माजरत की थी और जब वो बेसाख्ता उसके कदमों पर गिर पड़ा था, तो उसमें रियाकारी और तसन्नो को जरा भी दखल न था। वाकई वो अपनी वफादारी की इस तौहीन पर तिलमिला गया था कि जब जान देने और लेने का वक्त आए, खा किसी के मुकाबले में, तो उससे पूछा जाता कि क्या तुम तैयार हो। और जब आलमगीर ने उसके जज्बात को सही तौर पर समझते हुए उससे माजरत की, तो अपने आका को इससे ज्यादा कुछ और कहते नहीं देख सका। वो सच्चे दिल से उसके कदमों पर गिर पड़ा। फिर जब आलमगीर ने खुद अपने हाथ से उसे उठाया और सीने से लगाया और सेवाजी की मुहिम उसके नाम लिखने का फरमान सादिर किया, तो उसकी मुसर्रत और नशातो सुरूर का अंदाजा करना मुश्किल था। कुलाहे गोशाए देहकां बआफ्ताब रसीद। आकाए वली नेमत के पास से खुश खुश जैसे बहुत बड़ा मनसब और एजाज लेकर आया हो। वो अपने कैंप में पहुंचा। आते ही उसने अपने दस्ते रास्त रामलाल को बुलाया और सरखुशी के आलम में उससे कहा, रामलाल तैयार हो जाओ, फौरन तैयार हो जाओ। रामलाल के इल्म में कोई ऐसी मुहिम नहीं थी जिस पर शहनशाह जा रहे हों या जय सिंह जाने वाला हो। इस फरमाइश से वो चौंक सा गया। उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए दरियाफ्त किया, कहाँ चलना है राजा राया? जयचंद ने कहा, हम शिकार को जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? वो कुछ सोचता हुआ गोया हुआ, आप जहां जाएंगे मैं साथ साथ रहूंगा, खा शिकार का मौका हो या जंग का। लेकिन सवाल यह है कि शिकार का ये कौन सा मौसम है? कहाँ का इरादा है? कहाँ जाएंगे आप शिकार करने? जय सिंह ने जैसे उसकी ये बातें सुनी ही नहीं, इसी सरखुशी के आलम में बोला, दक्कन। रामलाल ने सरापा हैरत बनकर उसे देखा और फिर मुतफक्कराना लहजे में पूछा, दक्कन? आप दक्कन शिकार करने जा रहे हैं? जय सिंह हंसने लगा। उसने कहा, हाँ मेरे दोस्त, हमें वहीं जाना है। रामलाल अब तक सूरत अहवाल का सही अंदाजा न कर सका था। उसने फिर सवाल किया, लेकिन आप शिकार करने दक्कन जाएंगे, इतनी दूर? जय सिंह ने उसी अंदाज में जवाब दिया, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, शिकार के लिए वक्त और जगह का तयन शिकारी नहीं करता। जहां अच्छा और हस्बे दिल खा शिकार मिले, वो तमाम कठिनाइयों और रास्ते की सौबतों को नजरअंदाज करता हुआ बेसानो गुमान पल पड़ता है और उस वक्त तक दम नहीं लेता जब तक अपने शिकार को पा न ले। रामलाल ने कुछ झिझकते हुए, इसलिए कि बार बार सवाल करते हुए वो डरता भी था, पूछा, लेकिन वो ऐसा कौन सा शिकार है जो सिर्फ दक्कन में ही मिल सकता है, यहाँ नहीं मिल सकता? आज तो कुछ अजीब सी बात सुन रहा हूँ। दूर दराज मकामात से शिकार के रसिया यहाँ आते हैं और आप दक्कन जा रहे हैं। भला किस तरह हैरत ना हो राजा साहिब? सरगोशी के अंदाज में जय सिंह ने रामलाल के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, वो शिकार सिर्फ दक्कन में ही मिल सकता है। रामलाल ने बेएतबारी की नजरों से उसे देखा मगर जबान से कुछ न कहा। जय सिंह ने फिर उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, उसका नाम है सेवाजी। बेसाख्ता रामलाल ने यही लफ्ज दोहराया, सेवाजी? जय सिंह ने कहा, हाँ, लेकिन अब देर न करो, मुंह अधेरे हम रवाना होना चाहते हैं। कसरे शाही के एक शानदार और बेशकीमत साजो सामान से आरास्ता पैरास्ता कमरे में आलमगीर का लख्ते जिगर और नूरे नजर शहजादा अजीम बैठा हुआ है। चेहरे पर तफक्कुर के आसार तारी हैं, किसी गहरी सोच में है और बिल्कुल खामोश। शहजादा अजीम आलमगीर का छोटा बेटा था। हुकूमत की जिम्मेदारियों में अभी उसे शरीक नहीं किया गया था। उसके शब रोज राहत व तान्नुम की जिंदगी में बसर हो रहे थे, कभी सैरो शिकार में, कभी मजलिस आराई में। वो जिंदा दिल और खुश मिजाज शख्स था। यही वजह थी कि लोग उससे मरूब कम थे, मोहब्बत ज्यादा करते थे। लेकिन उस वक्त खिलाफे मामूल वो खामोश और अफसुर्दा नजर आ रहा था, जैसे किसी गहरी फिक्र में मुस्तगरक हो। इतने में महल की एक बांदी गुलंदाम मुस्कुराती, बिजलियां गिराती, दबे पांव हाजिर हुई।
शहजादे ने नजर उठाकर उसे देखा और पूछा, क्यों आई हो गुलंदाम? वो मुस्कुराती हुई बोली, शहजादा वालाजा की खैर आफियत दरियाफ्त करने। अच्छा हूं, बस सिर्फ अच्छे हैं। तुम्हारी चालाकी और तर्रारी की ये बातें हमें इस वक्त गिरां गुजर रही हैं। क्यों आलीजा? इसलिए कि हमारा दिल रंजूर है। आपका दिल रंजूर है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप रंजूर हो सकते हैं तो इस दुनिया में खुश होने का हक किसे है? हमारे सिवा सबको। ये ना कहिए। क्यों, क्या ये गलत है? हाँ वालाजा, ये गलत है। महल का रहने वाला हर फर्द आपसे मोहब्बत करता है, आप पर जान छिड़कता है। लोगों को खौफजदा कर देना आसान है, लेकिन उनकी मोहब्बत जीत लेना मुश्किल है। आप उन किस्मत के धनी लोगों में हैं जो दिल जीत लेते हैं। दिल? किसका दिल? जिसका चाहे। ये तुम्हारा हुस्ने जन है। हुस्ने जन क्यों है? बताइए, कोई ऐसा भी है जो आपसे मोहब्बत ना करता हो? इसे तस्लीम करता हूं कि महल के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। अवाम को अभी तक मुझसे सरोकार नहीं पड़ा, ना वो मुझसे वाकिफ हैं ना मैं उनसे। लेकिन गुलंदाम, ये मोहब्बत तो दूसरी तरह की है। दूसरी तरह की मोहब्बत? हाँ गुलंदाम, क्या मोहब्बत की भी किस्में होती हैं शहजादा वालाजा? हाँ, क्यों नहीं होती? होती होंगी, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। भोली ना बनो, तुम सब कुछ जानती हो। उड़ती चिड़िया पहचान लेती हो, तुम आसमान की खबरें ला सकती हो, और इस वक्त इतनी भोली और नादान बनी हुई हो कि ये नहीं जानती कि मोहब्बत किस किस तरह की होती है। सच शहजादा वालाजा, मैं नहीं जानती। झूठ बोलती हो तुम। आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, वरना झूठ बोलने की जरूरत न थी मुझे इस वक्त। क्या जो मोहब्बत तुम्हें अपनी बहन से है, भाई से है, माँ से है, बाप से है, वैसी ही आसिफ खान से भी है? वो शर्मा कर कहने लगी, उनका नाम क्यों लेते हैं आप? क्यों, उनका नाम लेना जुर्म है? क्या तुम आसिफ खान को नहीं चाहती? क्यों नहीं चाहती? चाहती हूँ, और आसिफ खान तुम्हें नहीं चाहता। दिल का हाल खुदा के सिवा कौन जान सकता है। वैसे दावे तो बड़े बड़े हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि आसिफ खान के दावे झूठे नहीं हैं। वो वाकई सच्चे दिल से चाहता है तुम्हें। मुकर्रब खान से तुम्हारे लिए लड़ने पर तैयार हो गया था। वो तो कहो खैर गुजारी जहां पना को इन वाकयात की इत्तला हो गई और उन्होंने आसिफ खान के हक में फैसला कर दिया। लेकिन बड़ा अच्छा होता अगर फैसला मुकर्रब खान के हक में होता। झाड़ू फिरे उसके मुंह पर। ये क्यों? तुम उस काबिल थी। आखिर आज मुझ पर इतनी इनायत क्यों हो रही है? यूं तो बड़े दावे हैं, लेकिन तुमसे एक मामूली सा काम ना हो सका। वो कौन सा काम है जो आपने कहा और मैंने नहीं किया? भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमने तुमसे शोभा के लिए कुछ नहीं कहा था? शोभा? हाँ शोभा, ये क्या बात हुई? हाँ कुछ कहा तो था, लेकिन भूल गई, ऐसा ही समझ लीजिए। और फिर दावा करोगी कि हमारे पसीने पर खून बहा सकती हो। दावा करने में क्या जाता है, निभाऊंगी थोड़ी। बड़ी चालबाज हो। और कह लीजिए जो कुछ जी में आए, वरना मैं उसे जहर दे दूंगी। आसिफ खान से कहूंगा होशियार रहे तुमसे, वरना मैं उसे जहर दे दूंगी। हाँ तुमसे ये भी बईद नहीं है, बस तो होशियार कर दीजिए उसे, वरना वाकई किसी दिन शरबत में जहर हलाहिल घोल कर भेज दूंगी। जहां एक घूंट हलक से उतरा वहां फड़फड़ा कर दम निकला। अरे अरे, ये तो अपने होने वाले शौहर के लिए क्या कह रही है? आप कहलवा रहे हैं, मैं कह रही हूँ। गुलंदाम जी सरकार, फरमाइए। तुमने शोभा के बारे में कुछ नहीं बताया हमें। क्या बताऊं उसके बारे में आपको? जो कुछ तुम्हें मालूम हो, जो कुछ तुम बता सकती हो। जो कुछ मुझे मालूम हो, जो कुछ मैं बता सकती हूँ? हाँ। अच्छा तो सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ, कहो। वो सुबह गजरदम उठती है और पूजा पाठ करती है। नहीं, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती। फिर नमाज पढ़ती होगी। नहीं, अभी नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन सीख रही है कि किस तरह नमाज पढ़ी जाती है। क्या वो मुसलमान हो गई है? मुसलमान हो जाती तो क्या महल भर में सिर्फ मुझी को ये खबर मालूम होती? अच्छा खैर, सुबह दम उठती है, फिर मुंह हाथ धोकर किताबें लेकर बैठ जाती है। किताबें? हाँ, उसने अच्छी खासी फारसी सीख ली है। इतनी प्यारी जबान बोलती है कि वाह वाह, वो कहे और सुना करे कोई। बोलती होगी। फिर उसके बाद क्या करती है? उसके बाद महल में जो जिम्मेदारियां उसे सौंपी गई हैं उन्हें सरअंजाम देती है, और रात को मुझसे कहानी सुनते सुनते सो जाती है। जिन भूत की कहानियां सुनती होगी। नहीं, मुझे खुद जिन भूत से डर लगता है। उनकी कहानी क्या सुनाऊंगी भला? फिर क्या सुनाती हो? एक शहजादे से शुरू करती हूँ और एक राजकुमारी पर खत्म कर देती हूँ। ये क्या बात हुई? हाँ ठीक ही तो है। एक शहजादे एक राजकुमारी से मोहब्बत करता है और वो भी शहजादे को चाहती है। क्या वाकई वो राजकुमारी शहजादे को चाहती है? हाँ,
कहानी वाले शहजादे को। ओह,